अगर आपके बदन में कपड़े नहीं हैं तो आपको नंगे बदन भी नमाज अदा करना होगा। मा तास्ताही अनफुसाकुम, मानुषेर आत्मा जा चाइबे ताई। साथियों, मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि शैतान किस किस तरह से इंसान के साथ चाल चलता है। यदि से मुनाफिकेर छेले হয়, যদি সে কাফেরের ছেলে হয়, তাহলেও সে যদি সালাত আদায় করে তাহলে সে হবে মুমিন। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिन बादा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर। प्रिय दर्शक मंडली, सर्वप्रथम আমরা শুকরিয়া আদায় করি সেই মহান আল্লাহর, যে মহান আল্লাহ আমাদেরকে समस्त मखलुकात থেকে उत्तम এবং समस्त मखलुकात থেকে আমাদেরকে আফজাল করে তৈরি করেছেন। সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। তারপর মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোটি কোটি দরুদ এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাই। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকের বক্তব্যের মূল বিষয় হবে সালাত। এই সালাত মানুষকে যে সব আমলের মাধ্যমে মানুষ জান্নাত পেতে পারে তার মধ্যে একটি অন্যতম আমল হচ্ছে সালাত। এই ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলছেন, ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, অর্থাৎ নিশ্চয় সালাত হচ্ছে মানুষকে অসৎ এবং অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকার একটি মাধ্যম। এই ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলছেন, অবশ্যই এই ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলছেন, ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, অবশ্যই নিশ্চয় সালাত হচ্ছে মানুষকে একটি অসৎ এবং অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখার একটি মাধ্যম। এই ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কাল কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষকে এই সালাত সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হবে। যার সালাত গ্রহণযোগ্য রয়েছে তার সমস্ত আমল গ্রহণযোগ্য হবে এবং যার সালাত গ্রহণযোগ্য নয় তার সমস্ত আমলই বাতিল হয়ে যাবে। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়। হাদিস হচ্ছে হাদিসের সিলসিলা হাদিস নম্বর 598। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় যার সালাত সঠিকভাবে হবে, যার সালাত গ্রহণযোগ্য হবে তার সমস্ত আমল কাজে আসবে এবং যার সালাত গ্রহণযোগ্য হবে না তার কোনো আমল কাজে আসবে না, তার সমস্ত আমলই বাতিল হয়ে যাবে। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, তারপরে হাদিসে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সালাতের স্বভাব তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়। সালাতের স্বভাব তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়। এক, উজুর মাধ্যমে, দুই, রুকুর মাধ্যমে এবং তিন, সিজদার মাধ্যমে এই সালাতের স্বভাব বিভক্ত হয়। উজুর মাধ্যমে মানে যার সুন্দর উজু হবে তার সালাত গ্রহণযোগ্য হবে, আর যদি সালাত গ্রহণযোগ্য হয় তার সমস্ত আমল গ্রহণযোগ্য হবে এবং যদি সালাত গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে। এই হাদিসে উল্লেখ করা রয়েছে। তারপরে দুই, যার রুকু সুন্দরভাবে হবে তার সালাত গ্রহণযোগ্য হবে এবং যার সালাত গ্রহণযোগ্য হবে তার সমস্ত আমল গ্রহণযোগ্য হবে এবং যার সালাত গ্রহণযোগ্য হবে না তার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে। এই কথা আল্লাহর রাসূল এই হাদিসে বলেন। তারপর তিন, সিজদা।
সিজদা যদি সুন্দরভাবে যথাযথভাবে হয় তাহলে তার সলাৎ গ্রহণযোগ্য হবে, এবং সলাৎ যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে তার সমস্ত আমল কাজে আসবে, আর না হলে তার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে। এ কথা আল্লাহর রসুল বলেন। অল আসর, এই কালের কসম, এই সময়ের কসম, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তর মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তারা নয়। ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর ইল্লাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত ওয়া তাওয়াসাউ বিল হক ওয়া তাওয়াসাউ বিস সাবর, কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করেছে এবং ধৈর্য ধারণ করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্তর মধ্যে নয়। তাহলে প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্তর মধ্যে না থাকতে হলে, আমাদেরকে সৎ আমল করতে হলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম সলাৎ আদায় করতে হবে। সলাৎ যদি না থাকে আপনার, তাহলে আপনার কোনো আমলই কাজে আসবে না, আপনার সম্পূর্ণ আমল বাতিল হয়ে যাবে। এই কথা আল্লাহর রসুল বলেন। তারপরে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 5 ওয়াক্তের সলাৎ এক জুমা হতে অপর জুমা পর্যন্ত, এক রমজান হতে অপর রমজান পর্যন্ত কাফারা হিসাবে মহান আল্লাহ কবুল করবেন। যদি আপনি যদি ফজরের সলাত আদায় করেন, তাহলে ফজরের সলাত আদায় করা থেকে নিয়ে জোহর পর্যন্ত যেগুলি ছোটোখাটো গুনাহ করেছেন, যেগুলি সাগিরা গুনাহ করেছেন, মহান আল্লাহ যখন জোহরের সলাত আদায় করবেন, তখন সাথে সাথ মহান আল্লাহ আপনার সমস্ত গুনাহকে মুছে দিবেন এবং ক্লিন করে দিবেন। এই কথা আল্লাহর রসুল বলেন এবং মহান আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেন। আর যদি আপনি জোহরের সলাত আদায় করলেন, তখন থেকে নিয়ে আসর পর্যন্ত যেগুলি ছোটোখাটো গুনাহ আপনি করেছেন, আসরের সলাত আদায় করার পর আপনার সম্পূর্ণ গুনাহ মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। এবং যদি আপনি রমজান মাসের সিয়াম পালন করেন এবং রমজান মাসে সলাত সম্পূর্ণ 5 ওয়াক্তের সলাত আদায় করেন, তাহলে এই রমজান থেকে নিয়ে সামনে রমজান পর্যন্ত আপনার সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এই কথা আল্লাহ তাআলা বলেন। যদি আপনি কবিরা গুনাহ করে থাকেন, তাহলে মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। কবিরা গুনাহ মানে শিরক, কবিরা গুনাহ মানে শিরক, শিরকের গুনাহ মহান আল্লাহ এভাবে ক্ষমা করবেন না। শিরকের গুনাহর ক্ষমা চাইতে হলে আপনাকে রাত্রে উঠে আপনাকে 2 রাকাত সালাত আদায় করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে কেটে আপনাকে চোখের জল ফেলিয়ে গুনাহর ক্ষমা চাইতে হবে। আর আপনাকে আল্লাহর সাথে ওয়াদা করতে হবে যে আল্লাহ, আজকের পর আমি এই কবিরা গুনাহ করব না, আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। 2 রাকাত সালাত আদায় করার পর আপনাকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। নিশ্চয় মহান আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু যে কোনো কাজ আপনি করবেন, যাই কিছু আপনি আল্লাহর কাছে চাইবেন, আপনাকে সলাতের মাধ্যমেই চাইতে হবে, তাছাড়া কোনো উপায় নাই। আপনাকে সলাত আদায় করতে হবে, যে কোনো মূল্যে আপনাকে সলাত আদায় করতে হবে। এই সলাত আদায় করা ছাড়া আপনার কোনো উপায় নাই। ইন্নাস সলাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, নিশ্চয় সলাত হচ্ছে মানুষকে অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার একটি ভালো আমল। অসৎ এবং অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকার একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে সলাত। সলাত না হলে আপনার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে। সলাত না আদায় করলে আপনার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে। তাই তো আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সলাতের স্বভাব 3 ভাগে বিভক্ত। সলাতের স্বভাব 3 ভাগে বিভক্ত। 1, ওযু সুন্দর হতে হবে। 2, রুকু সুন্দর হতে হবে। 3, সাজদা সুন্দর হতে হবে। যদি আপনার ওযু সুন্দর না হয়, তাহলে আপনার সলাত গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি আপনার সলাত গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে আপনার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে, আপনার সমস্ত আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না। এবং 2, রুকু যথাযথ করতে হবে। যদি আপনার রুকু যথাযথ না হয়, তাহলে আপনার সলাত যথাযথ হবে না, তাহলে আপনার সলাত গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি আপনার সলাত গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে আপনার সমস্ত আমল গ্রহণযোগ্য হবে না, আপনার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে। এ কথা হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়। তারপরে 3,
যদি আপনার সাজদা যথাযথ পূর্ণভাবে না হয় তাহলে আপনার সলাৎ পূর্ণভাবে হবে না, তাহলে আপনার সলাৎ গ্রহণযোগ্য হবে না, তাহলে আপনার সলাৎ বাতিল হয়ে যাবে। তাহলে আপনার সলাৎ যদি বাতিল হয়ে যায় তাহলে আপনার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এখন আপনাদের সাথে আমার কথা হচ্ছে যে আপনারাকে যে কোনো মূল্যে আপনারাকে সলাৎ আদায় করতে হবে। সলাৎ পরিত্যাগকারী কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না। কেননা আপনি যদি বাড়ির সম্পূর্ণ ধন সম্পদ যদি আপনি ফকির মিসকিনকে দিয়ে লুটিয়ে দেন, আপনি যদি সমস্ত ধন সম্পদ দান করে দেন আল্লাহর রাস্তায়, আর যদি আপনি সলাৎ আদায় না করেন তাহলে আপনার সেই ধন সম্পদ দান করার এক পয়সাও মূল্য নাই। কারণ এখানে বারবার বলা হচ্ছে যদি আপনি সলাৎ আদায় না করেন, যদি আপনার সলাৎ গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে আপনার সম্পূর্ণ আমল বাতিল, তাহলে আপনার সমস্ত আমল বাতিল। তাহলে এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় আপনার যদি সলাৎ না থাকে তাহলে আপনার কোনো নেকি নাই। অন্য হাদিসে আছে, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রসুল, কাফির এবং মুমিনের মাঝে পার্থক্য কি? রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তখন বললেন, বাইনার রাজুলে ও বাইনার শিরকি ওয়াল কুফরি তারকুস সলাত। যে ব্যক্তি সলাত আদায় করলো সে হচ্ছে মুমিন, এবং যে ব্যক্তি সলাত আদায় করলো না সে হচ্ছে কাফির। কাফির এবং মুমিনের মাঝে পার্থক্য শুধুমাত্র সলাত। সলাত হচ্ছে কাফির এবং মুমিনের মাঝে পার্থক্য। সলাত আদায় যে করবে সে হবে মুমিন। যদি সে মুনাফিকের ছেলে হয়, যদি সে কাফেরের ছেলে হয়, তাহলেও সে যদি সলাত আদায় করে তাহলে সে হবে মুমিন। এবং যদি কোনো হাজি সাহেবের ছেলে, কোনো বড় মুহাদ্দিসের ছেলে হয়, সে যদি সলাত আদায় না করে তাহলে সে হয়ে যাবে কাফির। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়। তারপর আরও একটি যুক্তি, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা যখন ইন্তেকাল করেন তখন আল্লাহর কাছে আল্লাহর নিকট মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরখাস্ত করলেন যে আল্লাহ আমার চাচাকে বাঁচিয়ে নাও, আল্লাহ আমার চাচাকে বাঁচিয়ে নাও। তখন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার চাচাকে বলছেন মৃত্যুবরণ করার সময় কি চাচা একবার কলমাটি পাঠ করে নাও, একবার কলমাটি পাঠ করে নিন। কিন্তু তার চাচা কলমা পাঠ করলো না। তাই মহান আল্লাহ বললেন কি, এই মোহাম্মদ, তুমি তোমার চাচার জন্য এত কেন মাথা খারাপ করছো? তুমি এতই কেন করছো? তোমার চাচা ইসলাম গ্রহণ করলো না, তোমার চাচাকে আমি সাজা দিতে ছাড়বো না। তখন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আমার প্রতিপালক, হে আমার রব, আমার চাচাকে আপনি বাঁচিয়ে নিন। তখন মহান আল্লাহ বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার চাচাকে একটি ছোট্ট শাস্তি দেওয়া হবে। তোমার চাচাকে আমি একটি ছোট্ট শাস্তি দেবো। সে শাস্তি হচ্ছে তার পায়ে আগুনের জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে। তো মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, সেই আগুনের জুতা যখন আমার চাচার পায়ে পরিয়ে দেওয়া হবে তখন আমার চাচার মাথার মগজ পর্যন্ত ডগবগ করে ফুটতে থাকবে। তো আপনারা, প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা কোথায় আছেন? আপনারা ভাবছেন আপনাদের মাথায় শয়তান একটি কথা ঢুকিয়ে রেখেছে যে আমরা মুসলমানের ছেলে, আমরা মুসলমানের গোষ্ঠী, আমরা মারা গেলে এক না একদিন জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে যাব। এ কথাই ঠিক। কিন্তু আপনারা কি জানেন, একটি আগুনের জুতা যদি আপনার পায়ে পরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আপনার মাথার মগজ পর্যন্ত টকবক করে ফুটবে। তাহলে এটি শাস্তি, সব থেকে ছোট শাস্তি। তাহলে আরও বড় বড় শাস্তি কি হতে পারে? প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনি হচ্ছেন, প্রত্যেকটি মানুষ হচ্ছে একটি দায়িত্বশীল। প্রত্যেকটি মানুষকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ কথা আল্লাহর রসুল বলেন, প্রত্যেকটি মানুষ হচ্ছে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকটি মানুষের জরুরি নিজকে বাঁচাওয়ার, নিজকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার, এবং নিজের ছেলেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার, এবং নিজের স্ত্রীকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার। প্রত্যেকটি মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে নিজ নিজ দায়িত্ব সবাইকে পালন করতে হবে। যে কেউ হোক, সব মানুষকে সলাত আদায় করতে হবে। সলাত আদায় না করলে সে হবে কাফির। নিজ নিজ দায়িত্ব প্রত্যেককে মানুষকে পালন করতে হবে। নিজের আহলে পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হবে, নিজকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হবে। সলাত আদায় করতে হবে। সলাত না আদায় করা হলে
সে হবে কাফের। এটাই আমরা পৃথিবীর মানুষকে বোঝাতে পারছি না যে সলাত আদায় না করলে সে কাফের হয়ে যাবে, সলাত আদায় না করলে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো বলছেন সে মুশরিক হয়ে যাবে। মুশরিক এবং কাফের তার থাকার জায়গা হবে জাহান্নাম, তাই সে জান্নাতে কখনো যেতে পারবে না, তার থাকার জায়গা হবে জাহান্নাম। একটি হাদিসে এসেছে, আইবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, কখনো এমন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, কখনো এমন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না যারা সলাত ত্যাগকারী, কখনো এই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না যারা সলাত ত্যাগকারী। আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কখনো এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না, কখনো এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না যারা সলাত আদায় করে, কখনো এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না যারা সলাত আদায় করে। এটি হচ্ছে বুখারী এবং মুসলিম হাদিস নম্বর 525 এবং মিসকাত হাদিস নম্বর 575-এ এ কথা উল্লেখ করা রয়েছে। যারা সলাত আদায় করবে, সৎ আমল করবে, যারা সলাত আল্লাহর রসুলের পদ্ধতিতে করবে, 5 ওয়াক্তের সলাত আদায় করবে, তারা কখনো জাহান্নামে যাবে না, তারা জান্নাতে যাবে। এই কথা এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমরাকে সলাত আদায় করতেই হবে, যে কোনো মূল্যে সলাত আদায় করতে হবে। যদি কোনো মানুষ সলাত আদায় করে এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়, তাকে এক রমজান থেকে অপর রমজান পর্যন্ত যা গুনাহ করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। যদি কোনো মানুষ এই জুমা থেকে ওই জুমা পর্যন্ত সলাত আদায় করে, তার মধ্যবর্তী যা গুনাহ করবে মহান আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন এই সলাতের মাধ্যমে। যদি কোনো মানুষ ফজরের সলাত আদায় করার পর কোনো ছোটোখাটো গুনাহ করে থাকে, তাহলে জোহরে যখন সলাত আদায় করবে মহান আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, এই কথা মহান আল্লাহ বলেন এবং এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়। তাহলে এই সলাত কত মূল্যবান জিনিস, এই সলাত তাহলে কত মূল্যবান জিনিস। সমস্ত কাল কিয়ামতের দিন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কাল কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। কাল কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যার সলাত গ্রহণযোগ্য হবে তার সমস্ত আমল গ্রহণযোগ্য হবে, এবং যার সলাত গ্রহণযোগ্য হবে না তার সমস্ত আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমাকে আর আপনাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে এবং জান্নাত লাভ করতে হলে 2টি কাজ করতে হবে। এক, আমাদেরকে সলাত আদায় করতে হবে এবং আমাদেরকে কখনো সলাত ছাড়তে হবে না। আর 2, আমাদেরকে শিরক করতে হবে না। মহান আল্লাহ বলছেন, কোনো মানুষ যদি কিয়ামতের মাঠে আকাশ জমিন পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হয়, তাহলে আমিও তার জন্য আকাশ জমিন পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব, কিন্তু তার যেন শিরকের গুনাহ না থাকে। তাহলে প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, মানুষ যদি সলাত আদায় না করে তাহলে সেটিও শিরকের গুনার মধ্যে গুনতিতে আসবে। কারণ সলাত আদায় যদি না করে, মহান আল্লাহ বলছেন, তুমি আমার উপাসনা করো, তুমি আমার পূজা করো। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমি বলছিলাম যে যদি আপনি সলাত আদায় না করেন তাহলে আপনার শিরকের গুনাহ হবে। কিভাবে হবে? মহান আল্লাহ বলছেন, তুমি আমার উপাসনা করো, তুমি আমাকে পূজা করো, তুমি আমাকে সাজদা করো। যদি আপনি মহান আল্লাহকে সাজদা না করেন তাহলে আপনি কি করছেন? আপনার নাফসের পূজা করছেন, আপনি আপনার নাফসের কথা শুনছেন, মহান আল্লাহর কথা শুনছেন না। যে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তার কথা আপনি শুনছেন না, আপনি নিজের নাফসের কথা শুনছেন। এবং যদি মহান আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারো যদি কথা আপনি শুনেন, অন্য কারো যদি আপনি উপাসনা করেন, তাহলে তো এটাই তো হচ্ছে শিরকের গুনাহ। তাহলে সলাত আদায় না করলে সেটা হবে শিরকের গুনাহ, এবং সলাত আদায় না করলে তার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে। সলাত আদায় না করলে আপনার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে, আপনার কোনো আমল কাজে আসবে না। আপনি যদি বলেন যে আমি খালি সলাত আদায় করি না, বাকি আমার তো সব আমল ভালো, তাহলে আপনি বারবার যে হাদিসে বলা যাচ্ছে, বারবার যে মহান আল্লাহ আপনাকে বলছেন
যে সলাত আদায় না করলে তার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে, তার সমস্ত আমল কোনো কাজে আসবে না। তা আপনি এই কথাগুলো শুনে বোঝার চেষ্টা করবেন। আমাদেরকে যে কোনো মূল্যে সলাত আদায় করতে হবে, সলাত আদায় না করলে আমাদের কোনো উপায় নাই। সলাত যে ব্যক্তি আদায় না করবে সে কাফের হয়ে যাবে, আর কাফেরের থাকার জায়গা হবে জাহান্নাম। আমরা পৃথিবীতে মানুষকে এটাই বোঝাতে পারলাম না যে কাফের কাকে বলে। আমরা মানুষকে এটাই বোঝাতে পারলাম না যে কাফের কাকে বলে। কাফের হচ্ছে যে ব্যক্তি সলাত আদায় না করবে, তাকেই বারবার এই হাদিসে এবং আল্লাহর কোরআনে বলা হচ্ছে যে সেটাই হচ্ছে কাফের, যে ব্যক্তি সলাত আদায় করবে না। আর সলাত আদায় যে ব্যক্তি করবে না সেই হবে কাফের। তো আমরা সেটাই বুঝতে পারলাম না যে কাফের কাকে বলে। আমরা ভাবছি যে হিন্দু যারা, খ্রিস্টান যারা, তারাই হচ্ছে কাফের, কিন্তু না প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, সেটা না। যদি আপনি মুসলমানের ছেলে হন, আপনি যদি সলাত আদায় না করেন তাহলে আপনিও হবেন কাফের। যদি কোনো হিন্দুর ছেলে যদি সলাত আদায় করে এবং 5 ওয়াক্তের সলাত কায়েম করে, তাহলে সেই হিন্দুর ছেলেও সে মুমিন হতে পারে। কিন্তু আপনি যদি হাজী সাহেবের ছেলে হন, আপনি যদি সলাত আদায় না করেন তাহলে আপনি হয়ে যাবেন কাফের, আর কাফেরের থাকার জায়গা হবে জাহান্নাম। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনার ছেলেকে আপনি যদি বলেন যে যা কিশনগঞ্জ যা, ফালানা জিনিস নিয়ে আয়, তাহলে আপনার ছেলে দৌড়িয়ে চলে যাবে। আর আপনি সলাত আদায় করতে বলছেন না। যদি আপনার ছেলে আপনার কথা না শুনে, আপনার কাজ করে না দেয়, তাহলে আপনি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। আপনার কি এটাও দায়িত্ব নাই যে আপনার ছেলেকে আপনি সলাত আদায় করতে বলবেন? প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনার বাড়ির পিছনে যদি আগুন লেগে যায়, আপনার ছেলে যদি সেই আগুনে পোয়ার জন্য দৌড়িয়ে চলে যায়, তো আপনি কি আপনার ছেলেকে বাঁচাতে যাবেন না? যদি আপনি আপনার ছেলেকে বাঁচাতে যান, তাহলে সেই জাহান্নামের আগুন, যদি আপনার ছেলে সলাত আদায় না করে, সেই জাহান্নামের আগুনে যে পুড়বে, তা আপনি আপনার ছেলেকে বাঁচাবেন না? তাই আমি বলছি, প্রত্যেকটা মানুষ হচ্ছে দায়িত্বশীল, নিজের দায়িত্বশীল, নিজের আহলে পরিবারকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে এবং নিজে বাঁচার চেষ্টা করবে সেই জাহান্নামের আগুন থেকে। এবং প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আর নিজ দায়িত্ব যদি মানুষ পালন করে, তাহলে সমস্ত মানুষ জান্নাতমুখী হওয়ার 99% চান্স থাকবে। তো আমরা নিজের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব। নিজের ছেলেকে, নিজের মেয়েকে, নিজের স্ত্রীকে আমরা সলাতের দিকে সলাতমুখী করব, আমরা মসজিদমুখী করাবো। আর আমরা সম্পূর্ণ, तो प्रिय दर्शक मंडल, अगर आपके बदन में कपड़े नहीं हैं तो आपको नंगे बदन भी नमाज अदा करना होगा। नमाज के लिए कोई कफ़ारा नहीं है। हर गुनाह के लिए कफ़ारा नमाज हो सकता है, लेकिन नमाज के लिए कोई अमल कफ़ारा नहीं हो सकता। हर गुनाह के लिए कफ़ारा नमाज हो सकती है, लेकिन नमाज के लिए कोई अमल कफ़ारा नहीं हो सकता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबीन बादा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। ब्रदरन इस्लाम, सबसे पहले हम उस रब का शुक्रगुजार करेंगे जिन्होंने हमें इस दुनिया में तमाम मखलूक़ातों से अफजल और बेहतर बनाया। सब मिलजुल कर बोले अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाख लाख दरूद और अल्लाह का रहमत नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आज हम जिस अनुवान को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं, उस अनुवान का नाम है सलात। ब्रदर इन इस्लाम, जिन सब अमल की वजह से इंसान जन्नत बहुत ही आसानी से पा सकता है, उस अमल का नाम है सलात यानी नमाज। नमाज एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को जन्नत से जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर सकता है। अगर वही नमाज इंसान अदा नहीं करती है तो इंसान जन्नत जाने की बजाय जहन्नम पहुंच जाती है। इसीलिए अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। ज़रूर वो इंसान जो सलात अदा करती है, जो सलात अदा करता है, वो इंसान तमाम दुनिया की गंदगी से बचकर, दुनिया की तमाम बुराइयों से बचकर जन्नत में दाखिल हो सकता है, जो आदमी सलात अदा करता है। सूरा अनकाबूत आयत नंबर 45 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, हदीस में आया है, अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह सुब्हान तआला के सामने जब बंदा हाजिर होगा, अल्लाह सुब्हान तआला के सामने जब बंदा हाजिर होगा कल क़यामत के मैदान में, तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हान तआला इंसान से नमाज के ही बारे में पूछेंगे। जिसका नमाज अच्छा होगा उसका सब अमल अच्छी होगी, और जिसकी नमाज अच्छी नहीं होगी उसका पूरे के पूरे अमल बातिल हो जाएंगे। अगर कोई इंसान जितने भी धन दौलत अगर भिखारी फ़कीर मिस्किन को पर लुटा देती है, कोई इंसान अगर दुनिया में दान खैरात करती है, कोई इंसान अगर हज करके आता है, कोई इंसान अगर मालों की ज़कात देता है, कोई इंसान अगर माँ बाप का सेवा करता है, कोई इंसान अगर जितना भी नेकिया कर ले, लेकिन वो इंसान अगर नमाज नहीं पढ़ती है, वो इंसान अगर सलात अदा नहीं करता है, तो जितने भी अच्छे अमल है पूरे के पूरे अमल उसका बातिल हो जाएगा। ये हदीस सिलसिला हदीस नंबर 598 में फरमाते हैं, ब्रदर इस्लाम, किसी भी हाल में हमें नमाज छोड़ना नहीं है, हमें किसी भी हाल में सलात अदा करना है। अगर आपके बदन में कपड़े नहीं हैं तो आपको नंगे बदन भी नमाज अदा करना होगा। नमाज के लिए कोई कफ़ारा नहीं है। हर गुनाह के लिए कफ़ारा नमाज हो सकता है, लेकिन नमाज के लिए कोई अमल कफ़ारा नहीं हो सकता। हर गुनाह के लिए कफ़ारा नमाज हो सकती है, लेकिन नमाज के लिए कोई अमल कफ़ारा नहीं हो सकता। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लेकिन हमारी नमाज कैसा होना चाहिए, हमारी सलात किस तरह का होना चाहिए, तब जाके हर गुनाह का वो कफ़ारा होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज यानी सलात
3 हिस्सों में नमाज की सवाब, नमाज की नेकियां 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक, नमाज का पहला हिस्सा जिसने वुजू अच्छी की और जाके सलात अदा की। अगर वुजू अच्छी नहीं हुई तो आपका नमाज बातिल हो जाएंगे। अगर वुजू अगर अच्छी तरह से नहीं की तो आपका नमाज बातिल हो जाएंगे। अगर नमाज आपका बातिल हो जाती है तो आपके हर अमल, हर नेक अमल आपका बातिल हो जाती है। ब्रदरान इस्लाम, अगर कोई इंसान अच्छी तरह से वुजू नहीं करता और जाके नमाज में खड़े हो जाते हैं तो उसका नमाज का कोई कीमत नहीं है, उसका नमाज बातिल हो जाती है। अगर उसकी नमाज बातिल हो जाती है तो उसकी दुनिया की हर अमल बातिल हो जाती है। ब्रदरान इस्लाम, उसके बाद नंबर 2, रुकू। जिसकी अगर अच्छी तरह से नमाज में रुकू की तो आपकी नमाज कबूल होती है। अगर आपकी नमाज कबूल होती है तो आपकी दुनिया की हर अमल कबूल हो जाती है। ब्रदरान इस्लाम, इसलिए हमें रुकू अच्छी तरह से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सर को झुकाया और उठ गया। जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रूबरू हमें उसी तरह से रुकू करनी है। नंबर 3, नमाज की नंबर 3 जो अच्छी से करनी होगी वो है सजदा। जिसकी सजदा अच्छी नहीं है उसकी नमाज कतई कबूल नहीं होगी। अगर उसकी नमाज कबूल नहीं हुई तो उसकी दुनिया में जितने भी अच्छे अमल की है उसके पूरे के पूरे अमल बातिल हो जाती है। ब्रदरान इस्लाम, इस हदीस से पता चलता है कि अगर ये 3 चीज़ नमाज में जो बताई गई है इस हदीस में, अगर ये 3 चीज़ नमाज में अच्छी तरह से नहीं होती है तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। अगर आपकी नमाज बातिल हो जाती है तो आपकी दुनिया में कितना भी अच्छा अमल कर ले, आपकी कोई भी अमल आपके काम नहीं आने वाली है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें नमाज को अच्छी तरह से सीखना चाहिए। हमें शर्म नहीं करना चाहिए। अगर छोटे हैं तो छोटे, बड़े हैं तो बड़े, हमें हर हाल में नमाज को सीखना है। हर हाल में हमें नमाज अदा करना है। दुनिया की तमाम मुसलमान, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको एक ज़िम्मेदारी है, सब पर एक ज़िम्मेदारी ला दी गई है। जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु पढ़ लेता है तो उस पर ज़िम्मेदारियां आ जाती हैं। उसको सबसे पहले नमाज अदा करनी है, उसे हर हाल में नमाज अदा करनी है, उसकी बदन में अगर कपड़े नहीं है तो लंगे बदन उसको नमाज अदा करनी है। अगर उसके पास पानी नहीं है तो उसको तयम्मुम करके नमाज अदा करनी है। अगर उसके पास टाइम नहीं है तो उसको खड़े होकर नमाज अदा करनी है। अगर उसके पास खड़े होने की ताकत नहीं है तो उसको बैठ के नमाज को अदा करनी है। अगर उस पर बैठने की भी ताकत नहीं है तो उसको लेटे लेटे नमाज अदा करना होगा। हर हाल में उसको नमाज अदा करना ही करना है। जो इंसान नमाज को छोड़ देता है वो कुफ्र करता है। जो इंसान नमाज को छोड़ देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि वो मुशरिकों में से हो जाता है। और एक हदीस, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, काफिर और मोमिन में फ़र्क क्या है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैन रजुली और बैन शिरके वल कुफ्र तर्कुस सलात। नमाज और काफिर और मोमिन में फ़र्क सिर्फ इतना होता है, काफिर और मोमिन में फ़र्क सिर्फ इतना होता है, वो बीच में नमाज आती है। जो इंसान नमाज अदा करती है वो मोमिनों में से होती है और जो इंसान नमाज नहीं अदा करती है वो काफिरों में से होता है। अगर वो इंसान हाजी साहब का भी बेटा हो, अगर उसने नमाज अदा नहीं करती तो वो काफिरों में से होता है। याद रखिए, अगर कोई इंसान हाजी साहब का भी बेटा हो, कोई इंसान मौलवी साहब का भी बेटा हो, अगर वो नमाज अदा नहीं करती है तो वो काफिरों में से होता है और काफिरों के लिए रहने के लिए जगह होगा जहन्नम। अगर कोई इंसान काफिर का बेटा होता है, मुशरिक का बेटा होता है, अगर उसने 5 वक्त की नमाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरकीब पर करती है तो वो मोमिनों में से होता है।
और मोमिन के लिए जन्नत, मोमिन के लिए जहन्नम हराम कर दी गई है। मोमिन जन्नत में रहेंगे। ब्रदरान इस्लाम, हमें किसी भी हाल पर नमाज़ पढ़नी है और हमें अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी से निभानी है। जितने भी लोग हैं दुनिया में, सब पर एक ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घर पे अपने अहले परिवार को नमाज के लिए हुक्म करे। जितने भी लोग दुनिया में ज़िंदा है, अल्लाह के आसमान के नीचे जितने भी लोग हैं, सबको एक ज़िम्मेदारी ये आती है कि सब लोग अपने घर में अपने अहले परिवार को नमाज अदा करने के हुक्म करें। अगर नहीं करता है तो कल क़यामत के दिन उनसे ये पूछा जाएगा कि तुम नमाज़ पढ़ते थे, तुम्हारी बच्चा क्यों नहीं पढ़ता था? तुम नमाज़ पढ़ते थे लेकिन तुम्हारे बीवी क्यों नहीं पढ़ती थी? तुम नमाज़ पढ़ते थे, तुम्हारी बेटी नमाज़ क्यों नहीं पढ़ती थी? कल क़यामत के दिन उससे वो हिसाब देना पड़ेगा। कोई इंसान अगर ये समझता है कि मैं खुद नमाज़ पढ़ता हूँ और मेरा ज़िम्मेदारी ख़त्म, लेकिन नहीं दोस्तों, जो इंसान नमाज़ पढ़ता है उस पर, जो इंसान नमाज़ पढ़ता है उस पर एक ज़िम्मेदारी भी आती है कि वो अपने परिवार को भी नमाज़ पढ़ने के लिए कहे। ब्रदरान इस्लाम, हर इंसान को नमाज़ पढ़ना होगा, तभी वो मोमिन हो सकता है। अभी अगर हम जाकर कह दे कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम काफिर हो, तो वो गुस्सा हो जाएगा। लेकिन ब्रदरान इस्लाम, हकीकत में तो यही है, हदीस में यही आता है और हमारे रब ने भी यही कहा कि जो नमाज नहीं पढ़ता है वो मुशरिकों में से हो जाता है। ब्रदरान इस्लाम, हम बहुत बड़े गलती में फंसे हुए हैं कि हम मोमिन का बेटा है, हम मुसलमान का बेटा है, इसलिए हमें एक ना एक दिन जन्नत मिलने ही वाली है। हम कितने भी बुरे काम कर ले, लेकिन हम मुसलमान का बेटा है, हमें एक ना एक दिन जन्नत मिलने ही वाली है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये सोचा, हम ये गलतफहमी में है कि हम मुसलमान का बेटा है, हमें एक ना एक दिन जन्नत मिलने ही वाली है, हमें जहन्नम से निकलकर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में डालेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों, कभी आपने सोचा कि अगर आपका उंगली भी थोड़ा सा आग में जल जाए तो आपको कितना तकलीफ़ होती है? आपकी उंगली अगर थोड़ा सा कट जाए तो आपको कितना तकलीफ़ होता है? आप जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरे नौजवान साथियों, तभी तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, जब जहन्नम को तैयार किया था, जब जहन्नम को तैयार किया गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जिब्राइल, तुम जाओ, जहन्नम हमने बनाया है, जाओ जाकर तुम जहन्नम देख के आओ। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम को देखने के लिए गए तो जहन्नम को देख कर आने के बाद कहा, या मेरी रब, या मेरी परवरदिगार, आपकी इज्जत की कसम, या मेरे रब, आपकी सम्मान की कसम, या मेरे रब, आपकी मर्यादा की कसम, ये ख़तरनाक जहन्नम, एक तरफ का आग दूसरी तरफ की आग को झपटा मारकर खा जाती है। इतनी भड़कते हुए आग, इतनी ख़तरनाक सज़ा, ये जहन्नम में कौन जाना चाहेगा? ये जहन्नम में कोई नहीं जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा, जिब्राइल तुम जाओ और फिर से जहन्नम को देख कर आओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर से जहन्नम देखने के लिए गया और जहन्नम देख कर आया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपनी बातों को चेंज करके कहा, अपनी बातों को बदल करके कहा कि या मेरे रब, आपकी इज्जत की कसम, या मेरे रब, आपकी सम्मान की कसम, या मेरे रब, आपकी जलाल की कसम, या मेरे रब, ये जहन्नम से कोई नहीं बच पाएगा। पता है, ये 2 बार जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम को देख कर आया, एक बार देख के आया तो कहा कि ये जहन्नम कौन जाना चाहेगा? ये जहन्नम कोई नहीं जाना चाहेगा। जब दोबारा देख के आया तो अपनी बातों को बदल कर क्यों कहा कि जहन्नम से कोई नहीं बचने वाला? वो इसलिए, जब पहली बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम देखने के लिए गया तो जहन्नम खुला हुआ था। जब पहली बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम को देखने के लिए गया तो जहन्नम खुला हुआ था। जब दोबारा जहन्नम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम देखने के लिए गया तो जहन्नम को ढाँक दिया गया।
इंसान की नफ्स से जहन्नम को ढांक दिया गया। इंसान की नफ्स से जहन्नम को ढांक दिया गया। इंसान जो अपनी मर्जी से चलेगा उस मर्जी से जहन्नम को ढांक दिया गया। इसीलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान को जानते थे कि इंसान अपने नफ्स की पूजा करने वाला है। इंसान अपनी नफ्स का सुनेगा, इंसान अल्लाह का ना सुनकर अपने आप का सुनेगा। और जो अपने मन से चलेगा, जो अपने नफ्स का सुनकर चलेगा, वो जहन्नम में तुरंत जाएगा। इसलिए जहन्नम बहुत ही जाना आसान है, क्योंकि इंसान अपने नफ्स का पूजा करने वाला है। इंसान अपने नफ्स का सुनेगा और वो तुरंत जहन्नम पहुंच जाएगा। और जन्नत इंसान की दुख मुसीबत, इंसान की तकलीफ़ों से घिरा हुआ है, जो इंसान जल्दी करना ना चाहेगा। इंसान तो दुख मुसीबत झेलना ना चाहेगा, इसलिए जन्नत जाना बहुत मुश्किल है और जहन्नम जाना बहुत ही आसान है। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इरशाद फरमाया, इसी रास्ते पर हमें चलना है। हमें अपने 5 वक्त की नमाज़ अदा करनी है और अपने अहले परिवार को 5 वक्त नमाज अदा करने की हुक्म देनी है। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, नमाज एक ऐसा चीज़ है जो इंसान अगर फजर की नमाज़ अदा करती है, कोई इंसान अगर फजर की नमाज़ अदा करती है, उसके बाद जब वो मस्जिद से निकलती है, मस्जिद से निकलकर अपने कामों पर मसरूफ़ हो जाती है। जब वो काम करते करते छोटा छोटा गुनाह जब इंसानों से हो जाता है, इंसान गलती से गुनाह कर लेता है, तो जितने भी गुनाह इंसान करता है फजर से लेकर जोहर तक जितना गुनाह करता है, जब वो इंसान जोहर की नमाज़ अदा करता है, तो जितने भी गुनाह उसके बीच में उन्होंने किया है, तमाम गुनाहों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देते हैं। और जोहर से लेकर असर तक जितना गुनाह करता है इंसान, जब असर की नमाज़ अदा करता है, तो इंसानों के जितने भी छोटे बड़े सब गुनाह होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। ब्रदरान इस्लाम, नमाज एक ऐसा चीज़ है जो आपकी गुनाहों को ख़त्म कर देता है। नमाज एक ऐसा चीज़ है जो इंसान की सब गुनाहों को ख़त्म कर देता है, सिवाय शिर्क और बिदात के गुनाह को छोड़कर। शिर्क का गुनाह उसी को कहा जाता है, कबीरा गुनाह को शिर्क का गुनाह कहा जाता है, सगीरा गुनाह छोटे छोटे गुनाहों को कहा जाता है। ब्रदरान इस्लाम, अगर आपके पास गलती से आपसे शिर्क हो गया है, आपके शिर्क का गुनाह हो गया है, तो आपको क्या करना होगा, रात में जाकर जब 3 हिस्से के अंदर 2 हिस्सा रात चला जाए, यानी 2:02-2:30 बजे जब रात में आपको उठना होगा, उठ के 2 रकात सलात अदा करना होगा और बहुत ही अच्छे से वुज़ू करना होगा, बहुत ही अच्छे से जाके 2 रकात नमाज अदा करना होगा और जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रोना होगा, गिड़गिड़ाना होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगना पड़ेगा, तब जाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको माफ़ कर सकता है। ब्रदरान इस्लाम, जो भी आपको कहना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो भी आपको मांगना है, इस नमाज से ही आपको मांगना पड़ेगा। अगर आपके पास नमाज नहीं है तो आपसे मुलाकात अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हो ही नहीं सकते। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुछ भी कहना है तो जाकर नमाज पे ही कहना होगा। ब्रदरान इस्लाम, नमाज एक ऐसा चीज़ है जो आपके गुनाहों को माफ़ करवा देता है। और नमाज की पूछताछ सबसे पहले क़यामत के मैदान में नमाज का ही पूछताछ होगा। अगर आपके पास नमाज का अमल अच्छा है तो आपका हर अमल अच्छा होगा। अगर आपके पास नमाज है तो आपके पास सब कुछ होगा। अगर आपके पास नमाज नहीं है तो आप काफिर है। अब काफिर है, जब काफिर जहन्नम में जाएगा ही जाएगा, उसके लिए जन्नत हराम है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम को इकट्ठा करके सबसे कहा कि सहाबा इकराम आओ मेरे पास, क्या तुम लोगों के घर के सामने से अगर कोई नहर गुजरता है, कोई पानी का रेत गुजरता है, अगर उसमें आप 5 वक्त, अगर उसमें आप दिन में 5 बार नहाएंगे तो क्या आपके बदन में कोई मैला मिट्टी रह सकता है? तो साहबा इकराम ने कहा कि नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम 5 बार नहाएंगे तो हमारे बदन में कोई मैला नहीं रह सकता। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से इरशाद फरमाया, ठीक इसी तरह से अगर 5 बार तुम नमाज अदा करोगे तो तुम्हारी बदन में कोई गुनाह ना रहेगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गुनाह ना रहेगा। तमाम गुनाहों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ़ कर देगा,
क्लीन कर देगा। ज़िंदगी में आपके कोई गुनाह न रहेगा। ज़िंदगी भर अगर आप सलात अदा करते हैं जब तक ज़िंदा है तो आपके पास कोई गुनाह न रहेगा। तमाम गुनाहों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्लीन कर देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको तमाम गुनाहों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देता है। बरदरान इस्लाम, हम जिस हदीस से बात कर रहे थे यह हदीस है मिस्कात, बुखारी, मुस्लिम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने आप नमाज अदा करें और अपने अहले परिवार को भी नमाज पढ़ने के हुक्म दिया करें। जब आपका बेटा को आप कोई काम करने के लिए कहते हैं, अगर आपका बेटा वो काम नहीं करता तो आप उसको मारते हैं, आप उसको पीटते हैं, आप उसको घर से निकाल देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, जब आपकी बेटा नमाज अदा नहीं करता तो आप उसको कुछ नहीं कहते, आप उसको हुक्म नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे बेटे को मैं कोई काम करने के लिए कहता हूँ तो मेरा बेटा अगर काम नहीं करता तो मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है, मेरे घर में कमाई नहीं आने वाला है। अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ पैसे को पहचानते हैं, लेकिन आपका बेटा जो कल क़यामत के बाद जब जहन्नम में जलेंगे तो आपको इस बात पर कोई फ़िक्र नहीं है। आपका बेटा अगर आपके घर में आग लग जाता है, मिसाल के तौर पे बता रहे हैं, अगर आपके घर में आग लग जाता है तो आप अपने बेटे को, और उस घर में आपका बेटा भी बंद है, तो आप क्या करेंगे? अपने बेटे को नहीं बचाएंगे? आप किसी भी हाल पर, कोई भी हाल में आपकी बेटे को ज़रूर बचाएंगे। लेकिन आपको ये एहसास नहीं है कि जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, कल जहन्नम में जब आपका बेटा जलेगा तो आपको इस बात पर ज़रा भी फिक्र नहीं है। आप अपने बेटे को नहीं बचाना चाहेंगे? आपको क़यामत पर विश्वास रखना होगा, आपको एक रब पर विश्वास रखना होगा, आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना होगा, तभी जाकर आप ये सब कर पाएंगे। आपके दिल पर इतना सख्त मोहर लगा दिए गए हैं कि कितने भी आप तकरीर सुनते हैं, कितने भी आप हदीस और कुरान की बातों को सुनते हैं, लेकिन आप पर कोई असर नहीं होने वाली। आप लोग गाना बजाना में मशहूर हो जाते हैं, आप लोग दुनिया में दुनिया करते करते मशहूर हो जाते हैं। आप लोग ये भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपका ज़िम्मेदारी क्या है, आप लोग ये भूल जाते हैं। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपको किसी भी हाल में जहन्नम से बचना होगा, आपको किसी भी हाल में जन्नत में जाना होगा। आपको जन्नत में अगर जाना है तो आपको सबसे पहले नमाज अदा करना होगा। आपको जहन्नम से बचने के लिए आपको नमाज अदा करना होगा। किसी भी हाल पर अपने अहले परिवार को नमाज पढ़ने के हुक्म दें और ख़ुद को भी जहन्नम से बचाने की कोशिश करें। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं यहीं से अपना गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो पर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि शैतान किस किस तरह से इंसान के साथ चाल चलता है और किस किस तरह से वो अपनी शैतानी हरकत से इंसान को जहन्नम में डालने की कोशिश करता है। आप अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला माल नबीन बादा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी
वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यातिहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्नश्शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम। मोहतरमा नाज़रीन हज़रात, सबसे पहले हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाख लाख सलाम और अल्लाह सुब्हानहू तआला का रहमत करम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आज हम जिस अनवान को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं उस अनवान का नाम है शिर्क। मेरे नौजवान साथियों, इस दुनिया में शिर्क का गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ दूसरे को मिलाना बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा जुल्म है। इस शिर्क के बारे में सूरा लुक़मान आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यातिहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्नश्शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम। लुक़मान हकीम उसकी लड़का, उसके बेटा को इशारा कर कर कहते हैं कि मेरे कलेजा की टुकड़ा, मेरा बेटा, कभी अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। अल्लाह के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ कभी भी किसी को मिलाना मत। शिर्क का गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कोई इंसान अगर कल क़यामत के दिन अगर कोई इंसान आसमान और ज़मीन बराबर गुनाह लेकर कल क़यामत के दिन मेरे सामने हाजिर होगा तो मैं भी आसमान और ज़मीन की बराबर माफ़ी लेकर उस बंदे के सामने हाजिर होऊंगा। मैं बहुत बड़ा माफ़ करने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा माफ़ करने वाला हूँ। मैं हर गुनाह को माफ़ कर दूँगा, लेकिन अगर किसी ने शिर्क का गुनाह किया तो वो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद सूरा लुक़मान आयत नंबर 13 में कहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि शिर्क का गुनाह कभी माफ़ नहीं होता। और जो एक बार किसी इंसान ने शिर्क कर लिया तो आपने जो भी अच्छे अमल किया, ज़िंदगी में जो भी अच्छा अमल किया होगा, अगर 50 साल से भी वो ज़िंदा है, अगर वो 50 साल भी अच्छा अमल किया होगा तो ये शिर्क के गुनाह से पूरे उसकी जितने भी अच्छे अमल है सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने उस अच्छे अमल का कोई कीमत नहीं है अगर उसने शिर्क का गुनाह किया है। शिर्क का गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ नहीं करते हैं। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ देना, अल्लाह की ताकत के बराबर किसी और को ठहराना। शिर्क का गुनाह उसको कहा जाता है अल्लाह के पास मांगने से पहले जो किसी और के पास किसी चीज़ का मांगते हैं, अगर किसी चीज़ को मांगते हैं उसी को शिर्क कहा जाता है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, शिर्क का गुनाह कभी मत करना। शिर्क आजकल इतना आम हो गया है, अगर कोई इंसान गाड़ी में एक्सीडेंट होते होते बच जाता है तो कहता है कि ड्राइवर अच्छा था इसलिए हम बच गए। ये अपनी जवान का शिर्क है। मेरे नौजवान साथियों, कोई इंसान अगर बीमार रहता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास नहीं जाता, मस्जिद में नहीं जाता,
वो किसी बाबा के पास जाते हैं, वो किसी पीर के पास जाते हैं, वो किसी करबज के किसी जो जादूगर के पास जाते हैं और जाकर अपनी मदद मांगता है, उसी को शिर्क कहा जाता है। शिर्क का गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी माफ़ नहीं करता, याद रखना। मेरे नौजवान साथियों, अगर कोई इंसान का बच्चा नहीं होता तो अल्लाह के पास ना जाकर, अल्लाह के पास नमाज अदा करने के बाद नहीं मांगता है, वो जाके किसी बाबा पीर के दरबार में जाकर मांगता है, उसी को शिर्क कहा जाता है। वही शिर्क है, क्योंकि उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास नहीं मांगा, वो जाकर किसी बाबा के पास मांगा है, उसी को शिर्क कहा जाता है। मेरे नौजवान साथियों, अगर आप कभी ये सोचते हैं कि किसी बाबा के पास ताबीज़ बंधवा कर अगर हम दरवाजे में लटका देंगे तो हमारे घर में खैर बरकत आएगा, तो वो भी शिर्क है। अगर कोई इंसान अगर ये सोचता है कि मेरे बच्चे को नज़र लग जाएगा, इसलिए हम किसी बाबा के पास फूंक मरवा कर, किसी बाबा के पास ताबीज़ बनवा कर हम अपने बच्चे के गले में लटका देते हैं, उसी को मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों शिर्क कहा जाता है। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, जब हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं तो किसी लाठी के ऊपर हम फूल की माला डालकर उस लाठी को हम अगर सलाम करते हैं तो उसी का नाम शिर्क कहा जाता है। शिर्क उसका नाम कहा जाता है जो अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सर को झुकाना, उसी को शिर्क कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, अल्लाह के नाम को छोड़कर किसी और के नाम को लेकर अगर किसी तेल में फूंक मारकर दम करते हैं और वो तेल लगाता है और कहता है कि ये तेल लगाने से आदमी का तबीयत ठीक हो जाएगा, तो वो भी उसी को शिर्क कहा जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग शिर्क की गुनाह से बचे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला शिर्क की गुनाह कभी माफ़ नहीं करता। अल्लाह को छोड़कर किसी और के नाम को लेकर अगर हम किसी चीज़ पे फूंक मारते हैं, उस चीज़ को दम करते हैं और उस चीज़ को दीवार में चिपकाते हैं, किसी के गले में लटकाते हैं, किसी के हाथ में बांधते हैं, या कहीं किसी और के नाम को लेकर अगर उस खिल्ला को दम करके खिल्ला को ठोंकते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में खैर बरकत आएगा, अगर हम ऐसा करते हैं वो सब शिर्क का गुनाह है। अगर हम मोटरसाइकिल की किक पर लात मारते हैं अल्लाह को छोड़कर किसी और के नाम लेकर, तो वो भी शिर्क का गुनाह कहलाएगा, वो भी शिर्क का गुनाह होता है। मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग शिर्क से बचें। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, हमेशा ये बात याद रखना, ये जो शैतान होती है ये इंसान के लिए हमेशा खुला दुश्मन होती हैं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, शैतान का चाल अगर आप समझ जाएंगे तो आप कभी शिर्क का गुनाह ना करेंगे। शैतान का चाल यूँ होता है, कोई इंसान जब अल्लाह को छोड़ देता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ता है, तो शैतान उस जगह पर अपने दखल अंदाजी करता है और उस इंसान को अपने हाथ में कर लेता है। जो वो शैतान ने जो कहता है वो इंसान वही करता है। अल्लाह की रस्सी को हमें मजबूती से पकड़ना है और अल्लाह ने जो कहा है उस बातों पर गौर करना है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के ऊपर हमें गौर करना है। इन सब सारे चीज़ों को जो इंसान छोड़ देता है, शैतान उस पर कब्जा कर लेता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, जब कोई इंसान, एक बात की मिसाल पर बता रहे हैं, कोई इंसान अगर बाथरूम जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया कि तुम जब बाथरूम जाओगे, जब तुम पैखाना करने जाओगे, तो तुम ये दुआ पढ़ लेना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। अगर मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अगर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मान कर नहीं चलते हैं, जब हम दुआ नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही हम लेटरिन में बैठ जाते हैं, तो शैतान हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है। और शैतान क्या करता है,
शैतान जब हमारी अंदर घुस जाता है और हमारी किसी चीज़ को दबा कर पकड़ लेता है तो वो दर्द करने लगता है। तब वो इंसान क्या सोचता है कि ये किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। जब वो इंसान डॉक्टर के पास जाता है तो वो तो कोई बीमारी नहीं है कि वो डॉक्टर इलाज कर पाएगा, क्योंकि वो कोई बीमारी नहीं है कि डॉक्टर की दवा से वो ठीक हो सकता है। इसीलिए उसकी दिमाग में एक चीज़ का वसवसा शैतान हमेशा डालते रहता है कि फलाना जादूगर के पास जाओ, फलाना जादूगर के पास जाओ, तुम वहाँ ठीक हो जाओगे। शैतान ये वसवसा दिमाग में डालते रहता है। फिर वो इंसान उस जादूगर के पास जब जाता है तो वो जादूगर किसी गैर की नाम लेकर, किसी मसान के नाम लेकर, किसी शैतान के नाम लेकर जब वो फूंक मार देता है और कहता है कि सिंदूर लेके आओ और रसगुल्ला लेके आओ और लाल कपड़ा लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ और धूप लेके आओ, तब जाके तुम्हारा तबीयत सही होगा। जब वो इंसान वो सारे चीज़ कर लेता है, जब वो शिर्क का गुनाह कर लेता है, और ये सारे चीज़ शिर्क है, जब वो शिर्क का गुनाह कर लेता है तब वो शैतान उसको छोड़कर निकल जाता है। जब वो उसके अंदर से छोड़कर निकल जाता है, उसका जो शैतान का जो इरादा था सिर्फ शिर्क करवाना था, उसको जहन्नम में डालना था, इसलिए उसका वही चाल था। और वो इंसान जब शिर्क कर लेता है, जब गुनाह कर लेता है, बहुत बड़ा गुनाह कर लेता है, तब वो शैतान उसको छोड़कर निकल जाता है और उस आदमी का तबीयत सही हो जाता है। तब वो आदमी सोचता है कि फलाना जादूगर के पास हम गए थे और हमारी तबीयत सही हो गई। तब वो तो जाता है, उसका सारा ख़ानदान भी वही करता है। ये एक इंसान को जब शैतान पकड़ लेता है तो सारे उसके पूरे ख़ानदान को भी वो बर्बाद और तबाह और बर्बाद करके रख देता है, शिर्क का गुनाह करवाता है। शैतान का ये बहुत बड़ा एक चाल है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, शैतान की चाल से बचने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इल्म आपके अंदर होगा, अगर आपके अंदर इल्म होगा तो आप जान जाएंगे कि शैतान का क्या क्या चाल हो सकता है। इसीलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ कि हर इंसान का ज़रूरी है कि वो इल्म हासिल करे, हदीस और कुरान को समझे, कुरान की आयतों को समझे और हदीसों को भी समझे। इसलिए हम कहते हैं हर इंसान इल्म हासिल करने की कोशिश करे, अपने बच्चों को भी मदारिस में भेजें और बच्चों को भी इल्म हासिल कराए। मेरे नौजवान साथियों, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ शैतान का चाल कैसा होता है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मैं एग्जाम्पल के तौर से एक बात बता रहे हैं जो शैतान किस तरह से इंसान को जहन्नम के रास्ते पर ले जाता है। ये कोई हदीस नहीं है, ये एक एग्जाम्पल के तौर से हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि एक बाबा मस्जिद में गए, नमाज़ पढ़ रहा था, तो वो नमाज़ पढ़ने के बाद वो वहाँ पर बैठा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था। तो शैतान बड़े बड़े दाढ़ी लेकर, बड़े बड़े पंजाबी पहनकर, सर में टोपी लगाकर जाकर उसके बगल में बैठ गए और हाथ उठाकर दुआ करने लगे और इतना रो रहे थे, इतना गिड़गिड़ा रहे थे कि वो जो बाबा नमाज़ पढ़कर बैठा था वो सोच रहा है कि ये पता नहीं कितना बड़ा इंसान है, ये कितना बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है जो इतना रो रहा है और इतना अल्लाह सुब्हान व तआला से फरियाद कर रहा है। तो जब वो दुआ से फारिग हो गए वो शैतान, तो उस इंसान ने कहा कि भाई आप इस तरह से इतना रो क्यों रहे थे और इतना गिड़गिड़ा क्यों रहे थे, क्या आप कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिए? तो शैतान का चाल देखिए। शैतान ने क्या कहा कि अरे हम बहुत बड़ा गुनाह करके आए हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं, वो शैतान ने कहा, अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि तुम अगर कोई बड़ा गुनाह करके आओ और मेरे पास रो, गिड़गिड़ाओ, मेरे पास माफ़ी मांगो, तो मैं तुम्हारी बुलंद मर्तबा कर दूंगा, मैं तुम्हारे मर्तबा को बुलंद कर दूंगा, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इज्जत दूंगा। तो उस इंसान ने सोचा कि हमने तो कोई आज तक कोई गुनाह किया ही नहीं है, तो हम कैसे, मेरा मर्तबा कैसे बुलंद होगा? तो शैतान ने कहा कि अरे कोई बड़ा गुनाह कर लो, जाके कोई जिना वना का काम कर लो और जाकर
अल्लाह सुब्हान व तआला से माफ़ी मांग लेना और रो लेना, गिड़गिड़ा लेना, और तुम्हें बस बहुत बड़ा तुम्हारे मर्तबा बहुत बुलंद हो जाएगा। क्योंकि कोई शादीशुदा इंसान अगर जिना करता है तो उसको रजम करने की हदीस है और कुरान में भी है, जो उसको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। कोई इंसान अगर शादी करने के बाद जिना करता है तो उसको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है, इसलिए वो बहुत बड़ा गुनाह होता है शादीशुदा इंसान के लिए। जिना तो ऐसे भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो जिना तो जिना होता है। जिना एक ऐसे गंदा काम है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। ये दुनिया में भी बर्बाद कर देता है और आखिरत में भी बर्बाद कर देता है क्योंकि जिना एक ऐसा गंदा काम है कि ये इंसान की इज्जत को बर्बाद कर देता है। तो मेरे नौजवान साथियों, वो इंसान गया किसी गंदे जगह पर गया जाकर वो जिना करने के लिए, तो उस नेक इंसान का तो चेहरा नूरानी चेहरा, मुंह में दाढ़ी है और पंजाबी पहना हुआ है, उसको देखने में ही लगता है कि बहुत नेक इंसान है। तो उस इंसान को देखकर सब लोग, जो जितना भी मतलब वो गंदे काम करने वाली औरत थी, वो सब इंसान बदकिरदार औरत सब उसको देखकर भागने लगे और दरवाज़ा बंद करने लगे कि ये देखो बाबा आ गया है, पता नहीं क्या क्या फतवा देगा अभी। ये सोचकर सब लोग डरने लगे और अपने अपने घर में घुसने लगे और सब भागने लगे। लेकिन ये लड़की थी जो बाबा को देखकर भागी नहीं। तो बाबा से पूछा कि बाबा, आप यहाँ पर इतना घटिया, इतना गंदे जगह पर आप क्यों आए? तो उस इंसान ने, उस बाबा ने कहा कि देखो, मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुनाह करने के लिए आए हैं। तो हम ये गुनाह करने के बाद जाकर अल्लाह सुब्हान व तआला से माफ़ी मांगेंगे और रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दुआ करेंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला हम मेरे मर्तबा को बुलंद कर देगा, फिर मैं बहुत अच्छा बड़ा मकाम पाऊँगा। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरे मकाम को बड़े कर देंगे। ये सोच उसकी दिमाग में शैतान ने डाल दिया था। तो उस लड़की ने एक दिमाग लगाया कि अगर बाबा माफ़ी ना मांग पाए, बाबा अगर जिना करते करते ही वहीं पर अगर बाबा का इंतकाल हो जाए तो क्या करेगा बाबा? तो बाबा को उसने कहा कि बाबा, आप ये समझते हैं कि आपका मर्तबा बुलंद हो जाएगा, आप इसलिए बड़े गुनाह करने के लिए आए हैं, लेकिन आप कभी ये जानते हैं कि आपका अगर जिना करते करते अगर माफ़ी मांगने का टाइम भी ना मिले और आपका इंतकाल हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो बाबा ने सोचा, अरे हमने तो ये सोचा ही नहीं था। तब बाबा को समझ में आया कि वो बहुत बड़ा शैतान था जो उसको बहुत बड़ा गुनाह करवाने वाला था। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि शैतान किस किस तरह से इंसान के साथ चाल चलता है और किस किस तरह से वो अपनी शैतानी हरकत से इंसान को जहन्नम में डालने की कोशिश करता है। आप लोग जहन्नम से बचने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिर्क करने से ज़्यादा बचने की कोशिश करें और अपने आप को अल्लाह की तरफ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने की कोशिश करें। मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपको नमाज अदा करना है, नमाज कायम करना है। अगर आपके पास नमाज नहीं है तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक हदीस में आया है, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर और मोमिन में फ़र्क क्या है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काफिर और मोमिन में सिर्फ फ़र्क नमाज की होती है। काफिर नमाज नहीं पढ़ेंगे और मोमिन नमाज पढ़ती है। बैन रजूले व बैन सिरके वल कुफ्र तर्कुस सलात। नमाज और मोमिन और काफिर में फ़र्क सिर्फ नमाज की होती है। अगर वो किसी हाजी साहब का भी बेटा है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है तो वो काफिरों में से होता है। अल्लाह सुब्हान तआला तो उसको कहते हैं कि वो मुशरिकों में से हो जाता है। अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो वो मुशरिकों में से होता है, अल्लाह सुब्हान तआला खुद कहते हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बैन रजुल और बैन सिरके वल कुफ्र तर्कुस सलात। कोई इंसान अगर नमाज को छोड़ देता है तो वो काफिर हो जाता है।
मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले आप नमाज को अदा करने की कोशिश करें, नमाज को कायम करने की कोशिश करें और अपने आप को शिर्क के गुनाह से बचाने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन ये शिर्क का गुनाह को कभी माफ़ नहीं करने वाला। अगर गलती से शिर्क का गुनाह हो गया है तो आपको ज़िंदा रहते रहते इसी दुनिया में आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगना होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िंदा रहते हुए अगर आप माफ़ी मांग ले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ करने वाला है। लेकिन अगर शिर्क का गुनाह को लेकर आप मर जाते हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बात को याद रखना। अगर आपने शिर्क का गुनाह कर लिया है तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास वक्त है। आप नमाज पढ़ने के बाद जाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रोइए, गिड़गिड़ाइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगिए कि या अल्लाह, मैंने ये बहुत बड़ा गलती कर दिया है, मुझे समझ में नहीं आया कि शिर्क को किसको कहते हैं और हमने जाकर ये बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ कर दे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब हर रात में जब 3 हिस्से के अंदर जब 2 हिस्सा रात गुजर जाती है, तब मैं नीचे आ जाता हूँ और आवाज़ देकर कहता हूँ कि कौन है मेरी बंदा जो मुझसे माफ़ी मांगने वाला है, कौन है मेरे बंदा जो मजलूम है, जो मुझसे कुछ मांग रहा है, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। कौन है वो मेरे बंदा जिसका बच्चा नहीं हुआ है, वो मुझसे बच्चा मांगे, मैं उसको बच्चा देने वाला हूँ। किसी बाबा के पास ना जाकर अगर रात में उठकर अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे, 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगेंगे और जो आपके पास जो आपको चाहिए वो मांगेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह आपको अदा फरमाएगा। आप लोग अपने आप को शिर्क के गुनाह से बचाने की कोशिश करें और अहले परिवार को भी शिर्क के गुनाह से बचाने की कोशिश करें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम 7 बड़े गुनाह से बचने की कोशिश करो। 1, अल्लाह के साथ किसी और को मिलाना यानी शिर्क का गुनाह करना। 2, जादू करना। 3, किसी इंसान का खून करना यानी कत्ल करना। 4, सूद खाना। 5, यतीम की माल को ज़बरदस्ती खाना। 6, किसी जिहाद के मैदान से भाग जाना। 7, किसी औरत जो बेगर गुनहगार है, जो गुनहगार नहीं है, जिसने जिना नहीं किया है, उसके ऊपर जिना की तहमत लगाना। इस 7 चीज़ से जो इंसान बच जाएगा, इस 7 चीज़ से जो इंसान बच जाता है, वो इंसान इंशाअल्लाह जहन्नम से बच जाता है और वो इंसान को इंशाअल्लाह जन्नत मिलने ही वाली है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आप लोग अपने आप को शिर्क के गुनाह से बचाएं। अपने आप को आप लोग जन्नत के रास्ते पर अपने आप को ले जाने की कोशिश करें और जहन्नम से बचाने की कोशिश करें। ये बोलकर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे रहें और अगले वीडियो पर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। मा तास्ताहि आनफुसाकुम, মানুষের আত্মা যা চাইবে তাই পাবে। তাদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত রুজি এবং ফলমূল এবং তারা সম্মানিত ব্যক্তি। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिन बादा। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका लहुम रिज़्क़ुन मालूम फ़वाकिहु व हुम मुकरमून फ़ी जन्नतिन नाईम अला सुरूरिन मुतक़ाबिलिन। प्रिय दर्शक मंडली, सर्वप्रथम
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। তারপর মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কোটি কোটি দরুদ এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকের বক্তব্যের মূল বিষয় হবে জান্নাত। এই জান্নাত এবং জাহান্নাম দিয়েই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে পরকালমুখী করিয়েছেন। তাই মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের রসুল, আমাদের নবী জাহান্নাম এবং জান্নাত দিয়েই পরকালমুখী করার চেষ্টা করতেন। মানুষের মরণের পর যে ভয়াবহ, কঠিন ও জটিল তিনটি স্থান রয়েছে, যার প্রথম স্থান হচ্ছে কবর, দ্বিতীয় স্থান হচ্ছে কিয়ামতের মাঠ এবং তৃতীয় স্থান হচ্ছে জান্নাত এবং জাহান্নাম। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় লাভবান সেই ব্যক্তি যে মরণের পর জান্নাত লাভ করবে এবং সবচেয়ে অভাগ্যবান ব্যক্তি যে মরণের পর জাহান্নামে যাবে। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, তাই আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জাহান্নাম প্রস্তুত করলেন তখন জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বললেন, জিবরাইল তুমি যাও, আমি জাহান্নাম প্রস্তুত করেছি, যাও তুমি দেখে আসো। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম জাহান্নাম দেখতে গেলেন। সেই জাহান্নাম দেখে এসে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আর মহান আল্লাহকে বলছেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনার ইজ্জতের কসম, হে আমার মহান রব, আপনার সম্মানের কসম, হে আমার মহান আল্লাহ, আপনার মর্যাদার কসম, এই জাহান্নামে কি কেউ যাইতে চাইবে? এই জাহান্নামেতে কেউ যাইতে চাইবে না। জাহান্নাম এতই ভয়াবহ, জাহান্নাম এতই কঠিন, জাহান্নাম এতই জটিল যে একদিকের আগুন আরেক দিকের আগুনকে ঝাপটা মেরে ধরে খাচ্ছে। সেই জাহান্নামে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে, সেই জাহান্নামে কি মানুষ যেতে চাইবে? তখন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন, জিবরাইল তুমি আবারও যাও, জাহান্নাম দেখে আসো। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম আবারও জাহান্নাম দেখতে গেলেন। জাহান্নাম দেখে এসে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বলছেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনার মর্যাদার কসম, হে আমার রব, আপনার সম্মানের কসম, হে আমার মহান আল্লাহ, আপনার ইজ্জতের কসম, এই জাহান্নাম থেকে যে কেউ বাঁচতে পারবে না। কারণ একবার জিবরাইল আলাইহিস সালাম জাহান্নাম দেখে আসলেন, তখন বলছেন জাহান্নামে কি কেউ যাইতে চাইবে? দ্বিতীয়বার যখন জাহান্নাম দেখে আসলেন তখন বলছেন জাহান্নাম থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। তার মানে জাহান্নাম আগে ছিল খোলা। যখন দ্বিতীয়বার জিবরাইল আলাইহিস সালাম জাহান্নাম দেখতে গেলেন তখন সেই জাহান্নামকে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ঘিরে দেওয়া হলো। সেই জাহান্নামকে মানুষের নফস দ্বারা ঘিরে দেওয়া হলো। মানুষের নফস যা চাইবে, মানুষ যদি তা করে তাহলে তার জন্য জাহান্নাম হয়ে যাবে সহজ। জাহান্নাম যাওয়া অনেক সহজ, জান্নাত যাওয়া অনেক কঠিন। জান্নাতকে মানুষের দুঃখ, মুসিবত, কষ্ট দিয়ে ঘেরা আছে। জান্নাতকে মানুষের পরিশ্রম দিয়ে ঘেরা আছে। জান্নাত হচ্ছে একটি সুখময় জায়গা, জান্নাত হচ্ছে একটি অনবল শাস্তির জায়গা। ঠিক সেরকম জাহান্নাম হচ্ছে একটি কঠিন শাস্তির জায়গা, যেখানে মানুষ মরবেও না, যেখানে মানুষ বাঁচবেও না, তার নাম হচ্ছে জাহান্নাম। আর জান্নাত হচ্ছে তার নাম, যেখানে মানুষ ऐशो আরাম করবে, যেখানে মানুষ ফল বাগানে থাকবে, যেখানে মানুষ হুর ভোগ করবে, যেখানে মানুষ শরবত ভোগ করবে, যেখানে মানুষ নানান রকমের ফল ভোগ করবে, যেখানে মানুষ নারীদের সাথে তক্তে বসে ঠেস দিয়ে বসে জাম পান করবে, তারই নাম হচ্ছে জান্নাত। জাহান্নাম হচ্ছে যেখানে মানুষ আগুনের খুঁটির সাথে বাঁধা থাকবে এবং তার মাথায় গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে। জাহান্নাম হচ্ছে তার নাম এবং জান্নাত হচ্ছে তার নাম, যেখানে মানুষের জীবনে কোনো কষ্ট নাই, যেখানে মানুষ সুখে থাকবে, যেখানে মানুষ আনন্দতে থাকবে, যেখানে মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করে দিবেন, যেখানে মানুষ
মানুষের মানে খুশির কোনো শেষ নাই। জান্নাতে এতই খুশি, জান্নাতে থাকতে এতই মজা, জান্নাতে থাকতে এতই মজা যা মানুষের মুখে এবং হাতে কলম দিয়ে লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। জান্নাত হচ্ছে এতই খুশির জায়গা যেখানে মানুষের খুশির শেষ নাই। জান্নাতে মানুষ যা চাইবে তাই পাইবে, জান্নাতে মানুষ যা চাইবে তাই পাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, মা তাস্তাহি আনফুসাকুম, মানুষের আত্মা যা চাইবে তাই পাবে। জান্নাতে মানুষের আত্মা যা চাইবে তাই পাবে। এই জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, উলাইকা লাহুম রিজকুন মালুম ফাওয়াকিহু ওয়া হুম মুকরামুন ফি জান্নাতিন নাঈম আলা সুরুরিন মুতাকাবিলিন, অর্থাৎ তাদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত রুজি এবং ফলমূল এবং তারা সম্মানিত ব্যক্তি যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের জন্যে রয়েছে নিয়ামতের বাগান সমূহ। তারা মুখামুখি হয়ে আসন আসনি বসে থাকবে। আসন আসনি মানে জান্নাতি এবং হুর, জান্নাতি এবং হুর, সেই হুর যেই হুর একবার এই পৃথিবীতে উঁকি মেরে দেখে নিলে সেই পৃথিবী আলোতে আলোকিত হয়ে যাবে। সেই হুরের কথা বলছেন মহান আল্লাহ, যে এই পৃথিবীতে একবার উঁকি মেরে দেখে নিলে এই পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে এবং এই পুরো পৃথিবীটি সুগন্ধিতে ছড়িয়ে যাবে। সেই হুরের কথা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, জান্নাত হচ্ছে একটি আল্লাহর রহমতের বাগান। জান্নাত হচ্ছে একটি আল্লাহর রহমতের বাগান, যার আল্লাহর রহমতের বাগান রয়েছে, যে বাগানে মানুষের জন্য থাকবে হুর, মানুষের জন্য থাকবে শরাব, মানুষের জন্য থাকবে দুধের ঝর্ণা, মানুষের জন্য থাকবে মধুর ঝর্ণা, যার কথা এই আয়াত দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ব্যাপারে মহান আল্লাহ আরও সূরা মুহাম্মদ আয়াত নম্বর 15-তে বলছেন, মুত্তাকি লোকেদের জন্যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তার পরিচয় তো এই হচ্ছে তাতে স্বচ্ছ ও মিষ্টি পানির ঝর্ণাধারা পরিবহন করছে, এমন দুধের ঝর্ণাধারা পরিবহন করছে যা মানুষ জান্নাতি লোকেরা পান করবে এবং তার স্বাদ কোনোদিন পরিবর্তন হবে না। যতই হাজার হাজার কোটি কোটি সাল চলে যাবে তারপরেও তার সেই দুধের ঝর্ণার স্বাদ পরিবর্তন করা যাবে না। সেই দুধের ঝর্ণা সেভাবেই চলতে থাকবে। এবং আরও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, সেখানে সর্বদা প্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষে থেকে রয়েছে ক্ষমা। বলুন, প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা। ক্ষমা মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করে দেবেন। জীবনে সেখান থেকে আপনারা আর ফিরে কোনো জায়গা যাবে না, সেই জান্নাতে থাকবে এবং এবং বিশিষ্ট চোখের সুন্দরী হুরদের সাথে থাকবে এবং সেই জান্নাতেই থাকবে চিরস্থায়ী। তারপরে আরও জান্নাতি লোকেরা এমন শয্যার উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে যার আবরণ মোটা রেশমের তৈরি হবে, আর বাগানের ডালপালা ঝুঁকে থাকবে। সূরা আর রহমান আয়াত নম্বর 54। তার পরের আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলছেন, অফুরন্ত নিয়ামত সমূহর মধ্যে লজ্জাহীনত নাইন নারী থাকিবে। তাদেরকে জান্নাতি লোকদের পূর্বে না কোনো জিন না কোনো মানুষ কোনো দিন স্পর্শ করেছে, সেরকম নারী সেখানে থাকিবে, যে জান্নাতীরা সে নারীগুণকে ভোগ করবে। সূরা আর রহমান আয়াত নম্বর 56।
তারা তারা এমন সুন্দরী রূপসী যেমন হীরা ও মণি মুক্তা। সূরা আর রহমান আয়াত নম্বর 58। তারপরের আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন, জান্নাতি লোকদের পরবর্তী দুটি বাগান ছাড়াও আরও দুটি বাগান দেওয়া হবে। সূরা আর রহমান আয়াত নম্বর 66। তাতে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও আনার থাকবে। এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে সৎ চরিত্র অধিকারী সুন্দরী নারীগণ। সূরা আর রহমান আয়াত নম্বর 70। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে আরও বলেন, বড় চক্ষু বিশিষ্ট নারী গুণ থাকবে, যারা হবে অতীত সুন্দরী, তারা হবে অতীত সুন্দরী। সে নারীগণের সাথে জান্নাতীগণ সে নারীগণকে ভোগ করবে। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে একটি চবুকের সমান পরিমাণ জায়গা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকেও উত্তম। এটি হচ্ছে বুখারী এবং মুসলিম, হাদিস নম্বর 5372। তারপরের হাদিসে বলা হচ্ছে, আনাস ইবনে মালিক আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে এক সন্ধ্যা এবং এক সকাল যে ব্যক্তি ব্যয় করবে তা সমস্ত সম্পদ হতে উত্তম। যদি জান্নাতের কোনো নারী পৃথিবীতে উকি দেয়, তবে গোটা পৃথিবী তার রূপের ছাটায় আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ সুগন্ধিতে পরিণতি হয়ে যাবে। জান্নাতের নারীদের মাথার ওড়না গোটা দুনিয়া ও তার সব কিছুই যদি বিক্রি করে দেওয়া হয় তার চেয়েও উত্তম। এটি হচ্ছে বুখারী এবং মুসলিম, হাদিস নম্বর 5374। তারপরে হাদিসে বলা হচ্ছে, আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে মুমিনদের জন্য মুক্তা দ্বারা তৈরি একটি তাঁবু থাকবে, যার মধ্যস্থল হবে ফাঁকা। তার আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বড় গাছ আছে, যদি কোনো দুরন্ত ঘোড়া তার ছায়ার নিচে 100 বছর বহমান করে তারপরেও তার শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। জান্নাতে তোমাদের একটি কারো ধনুকের সমান পরিমাণ জায়গা গোটাও সূর্য যার উপর উঠে ও ডুবে তার চেয়েও উত্তম। এটি হচ্ছে বুখারী এবং মুসলিম, হাদিস নম্বর 5374। জান্নাতুল ফেরদৌসের প্রশস্ত হবে সবচেয়ে উপর, মানে জান্নাত যে আছে, জান্নাত হবে একটির পর একটি, একটির পর একটি, একটির পর একটি, তারপরে একটি, এরকম করতে করতে জান্নাত হবে সবচেয়ে ওপরে, যেটি জান্নাতুল ফেরদৌস সব থেকে ওপরে হবে। তার জান্নাতুল ফেরদৌসটি হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আরশ আজিমের নিচে। জান্নাতুল ফেরদৌস সবচেয়ে উত্তম জান্নাত। যখনই তাই তো আমাদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, যখনই তোমরা জান্নাত চাইবে তখনই জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবে। জান্নাতুল ফেরদৌস হচ্ছে একটি সব থেকে ভালো জান্নাত, সব থেকে বড় জান্নাত। তাই মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌসই চাইতে বলেছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে একটি বাজার আছে, প্রত্যেককে জুমার দিন জান্নাতীরা সেখানে একত্রিত হবে। তখন জান্নাতীরা যখন একত্রিত হবে, তখন মানুষের সাথে একজন জান্নাতের সাথে আর একজন জান্নাতীর সাক্ষাৎ হবে। সেখানে সালাম মোসাফা হবে এবং
তারপর উত্তর দিক থেকে একটি বাতাস আসবে, সে বাতাসে মানুষের জান্নাতীদের মুখমণ্ডলী এবং তাদের পোশাকে লাগবে। সেই বাতাসে মানুষের মুখমণ্ডলী আরও সুন্দর হয়ে যাবে এবং মানুষের পোশাক সুগন্ধিত হয়ে যাবে। তখন জান্নাতীরা সেখান থেকে যখন নিজের স্থানে ফিরতে থাকবে, তখন তাদের স্ত্রীগণ তখন তাদের স্থানে থাকবে। তখন যখন তাদের সাথে দেখা হবে, তখন তাদের স্ত্রীগণ বলবে, আল্লাহর কসম আপনি তো আরও সুন্দর হয়ে গেছেন, আল্লাহর কসম আপনি তো আরও সুগন্ধি হয়ে গেছেন। তখন জান্নাতীগণ বলবেন স্ত্রীগণকে, আল্লাহর কসম আপনারাও আরও সুন্দর হয়ে গেছেন। এই করে স্ত্রী এবং জান্নাতি এবং জান্নাতীদের স্ত্রীর সাথে তারা এভাবে কথা বলবে। জান্নাত হচ্ছে একটি আল্লাহর নিয়ামত, যা মানুষের জন্য তৈরি করে রাখা আছে। তাই প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, জান্নাত পেতে চাইলে আমাদেরকে কি করতে হবে? জান্নাত পেতে চাইলে আমাদেরকে এই পৃথিবীর খারাপ জিনিস, এই পৃথিবীর মন্দ জিনিস, এই পৃথিবীতে আমাদেরকে ভালো আমল করতে হবে। এই পৃথিবীতে আমাদেরকে ভালো আমল করে, চরিত্র ভালো করে এই পৃথিবী থেকে আমাদেরকে যেতে হবে। তাহলে আমাদেরকে মরণের পর পরকালে আমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। জান্নাত হচ্ছে একটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য উপহার রেখেছেন। সেই উপহার আমরাকে গ্রহণ করতে হবে, সেই জান্নাতে আমরাকে যাইতে হবে। এই পৃথিবীতে কতই না গুনহার কাজ মানুষ করে, কতই মিথ্যা কথা বলে। এই পৃথিবী করে যে যারা মারা যায় তারা কখনো জান্নাত লাভ করতে পারবেন না। জান্নাত রয়েছে মানুষের কষ্ট এবং মেহনত দিয়ে ঘেরা। জান্নাত রয়েছে মানুষের কষ্ট এবং মেহনত এবং মানুষের পরিশ্রম দিয়ে ঘেরা। জান্নাত হচ্ছে একটি মানুষের কষ্টর জায়গা। এই পৃথিবীতে যারা কষ্ট কাটবে তারা পরকালে জান্নাত লাভ করবে, এবং এই পৃথিবীতে যারা কষ্ট কাটবে তারা পরকালে জান্নাত লাভ করবে এবং মরার পর তারা জান্নাত লাভ করবে। মানুষের মরণের পর যে কঠিন ও জটিল তিনটি স্থান রয়েছে, যার প্রথম স্থান হচ্ছে কবর, এবং দ্বিতীয় স্থান হচ্ছে কিয়ামতের মাঠ, এবং তৃতীয় স্থান হচ্ছে জান্নাত এবং জাহান্নাম। আমাদের যদি প্রথম স্থানে আমরা পাস হয়ে যাই, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা কিয়ামতের মাঠেও আমাদের জন্য হয়ে যাবে আসান, এবং অবশ্যই আমরা ইনশাআল্লাহ জান্নাত লাভ করতে পারবো। আমরা পরকালের জন্যে এই পৃথিবীতে কিছু আমরা ভালো করার চেষ্টা করব। আমাদের ভালো আমলই আমাদেরকে জান্নাত নিয়ে যাবে। এই মন্দ আমল থেকে আমরা নিজকে বাঁচার চেষ্টা করব, আর ভালো আমলের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। আমাদেরকে ভালো আমল করতে হলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম জানতে হবে যে আমরা কিভাবে ভালো আমল করব। তাই আমাদেরকে সর্বপ্রথম শিক্ষা অর্জন করতে হবে। শিক্ষা অর্জন যদি না করা হয়, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো না যে কোনটা ভালো এবং কোনটা খারাপ। তাই আমাদেরকে প্রত্যেকের আমাদের জরুরি যে আমাদেরকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে। শিক্ষা অর্জন করলেই আমরা ভালো এবং মন্দ জিনিসটা বুঝতে পারবো, তাহলে আমরা সেদিকে এগিয়ে যাব। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। আপনারা সুস্থ থাকুন, আপনারা ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।